I hope you're all good and happy. So today we are going to begin with the lesson number 6, that is layers in Animate CC. So let's begin with this lesson. In this lesson, we are going to study about how to rename a layer, how to add a new layer, how to use layer, how to rearrange layers, and how to show or hide layers. Then how to lock layers, then we are going to study about the creating animation with multiple layers. Then how to mask in Animate CC, that Anya and Scenic. So let's begin. There are like transparent sheets. ये क्या होती है? Transparent sheets होती है that can hold object and are stacked on top of the each layer. जो hold करती है object को कैसे stacked होती है? Top of her each layer पे stacked होती है. Layers are useful while developing a big animation movie. ये कब useful होती है? Develop करने के लिए big animation movie को layers allow you to organize the artwork. ये क्या allow करती है? Allow करती है आपको organize करने के लिए artwork को, animations and other elements of your movie. You can draw and edit objects. आप draw कर सकते हो, edit कर सकते हो objects को in one layer without affecting the objects in other layer. कि अगर आप एक layer में editing कर रहे हो तो दूसरी layer के object effect नहीं होंगे. So, this is the option of show or hide all layers. This is the option of lock or unlock all layers. This is the option of show all layers as outlines. This is keyframe navigation control button. This is layer name. This is the new layer button. This is delete layer button. Now, do you know? A layer can be activated either by clicking on it. It's in the timeline. आप कैसे activate कर सकते हो? Timeline में उस पर click करके टाइम और या फिर आप सिलेक्ट कर सकते हो एनी ऑब्जेक्ट इन दैट लेयर तो आपकी लेयर एक्टिवेट हो जाएगी. नाउ रीनेम अ लेयर. हाउ टू रीनेम अ लेयर? टू मेथड्स टू रीनेम अ लेयर आर एज फॉलोज. फर्स्ट मेथड 1, सिलेक्ट द लेयर व्हिच यू वांट टू रीनेम. आपको पहले सिलेक्ट करना है वो लेयर जिसको आपको रीनेम करना है. डबल क्लिक ऑन द लेयर नेम एंड टाइप द न्यू नेम. आपको डबल क्लिक करना है लेयर नेम पे, देन न्यू नेम टाइप करना है, और या फिर राइट क्लिक करना है लेयर नेम पे, सिलेक्ट करना है आपको प्रॉपर्टीज ऑप्शन इन द from the context menu. Modify timeline layer properties from the menu. The layer properties dialog box appear. जो layer properties dialog box है वो appear होगा. Type the new name in the name text box and click on OK. Now how to add a new layers? So you can add layers by clicking on new layer. आप new layer add कर सकते हैं new layer button पे click करके अपनी timeline पे. क्लिक करना है आपको लेयर पे. टाइमलाइन ऑप्शन जो प्रेजेंट आपके इंसर्ट टैब में एक न्यू लेयर अपीयर हो जाएगी आपकी सिलेक्टेड लेयर के. नाउ यूजिंग लेयर्स. हाउ टू यूज लेयर? Let's understand working in layers with the help of an example. Now, first let's learn how to draw the given scenery in layers. ये given scenery को कैसे draw करेंगे layers में and color करेंगे इस music tools and section of tool panel and color section. First, आपको एक बैकग्राउंड ड्रॉ करना है विद ट्रीज, फैन, स्काई एंड अदर एलिमेंट्स इन लेयर 1 एंड रीनेम करना है लेयर 1 को एज बैकग्राउंड. उसमें क्या क्या आएगा? ट्रीज आएंगे, फैंस आएंगे और आपके स्काईज आएंगे. एड अ न्यू लेयर. आपको एक न्यू लेयर एड करनी है एंड रीनेम करना है. उसमें क्या होगा? टाइगर होगा एंड ड्रॉ करना है टाइगर उसमें. देन ऐड करनी है दूसरी लेयर एंड रीनेम करना है उसे मंकी एंड उसमें क्या ड्रॉ करना है? आपको सिर्फ मंकी ड्रॉ करना है. सेव करना है आपको सीनरी बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस. नाउ रीअरेंजिंग लेयर्स. कैसे रीअरेंज करते हैं लेयर्स को? इन एनिमेट सीसी एलिमेंट्स अपीयर ऑन स्टेज अकॉर्डिंग द पोजीशन ऑफ देयर लेयर. ये एलिमेंट्स अपीयर होते हैं स्टेज में किसके अकॉर्डिंग प्रेजेंट होता है? उसके पोजीशन ऑफ लेयर्स के प्रेजेंट होता है. द एलिमेंट्स आर विजिबल ऑन टॉप. जो एलिमेंट्स होते हैं कहाँ पे विजिबल होता है? टॉप पे व्हेन दे आर पार्ट ऑफ अपर लेयर. You can drag and move the layers to rearrange or change layer order. आप drag कर सकते हो, move कर सकते हो लेयर को, rearrange करने के लिए, change करने के लिए ऑर्डर को. In this example, the position of monkey and tiger can be rearranged as follows. जो position होती है monkey की और tiger की आप ऐसे rearrange कर सकते हो. Like click on monkey layer. आपको monkey layer पे click करना है, drag करना है monkey को in front of the tiger. Like this. To place the tiger in front of monkey, drag करना है आपको monkey layer को below the tiger layer. अगर आपको टाइगर फ्रंट पे लाना है तो आपको उस टाइगर लेयर के बिलो. नाउ शो और हाइड लेयर्स. While working in different layers, sometimes there is need to hide the layers. कोई नीड होती है हाइड करने के लिए layers को, so that contents of layer of other layers can be viewed clearly. जो कंटेंट होता है other layers को आप इसको clearly view कर सकते हो. This can be done by using show or hide layers feature. इसको आप कैसे कर सकते हो? show और hide layer feature को यूज करके You can hide all layers at once or hide that individually. आप एक बार में सारी layers को hide कर सकते हो या फिर individually कर सकते हो. Let's understand how to hide a layer in Animate CC. क्लिक करना है आपको लेयर पे जिसको आपको हाइड करना है, प्रेस करना है डॉट को.
देन प्रेजेंट जो कहाँ पे प्रेजेंट है, आई व्यू के जस्ट नीचे प्रेजेंट है, आई बटन के क्रॉस mark will appear, cross mark appear हो जाएगा in place of dot and the elements of the layer will disappear. जो elements है उस layer की वो सब disappear हो जाएंगी. If you want to hide all layers at same time, अगर आपको सारी layers एक ही टाइम पे hide करनी है, आपको क्लिक करना है आई बटन पे, all the layers will show the cross mark, सारी layers cross mark show करने लगेगी elements पे and all the elements will disappear at once. Now locking layers, how to lock layers? If you want to prevent any change, अगर आप चाहते हो कि कोई भी change prevent हो from happening in a particular layer while working, you can lock that layer. आप उस layer को lock कर सकते हो. Follow the given steps to lock layer. आपको क्लिक करना है layer पे, you want to lock, जिसको आपको lock करना है, then press करना है dot पे जो आपके lock बटन के just below present है. The dot will change to padlock icon. जो lock होगा वो padlock icon में change हो जाएगा, जिसका क्या मतलब होगा, the layer is locked. So क्लिक करना है आपको लॉक बटन पे, विल लॉक ऑल द लेयर्स एट वंस, ये आपके सारी लेयर्स को एक बार में लॉक कर देगा. नाउ creating animations with multiple. So let's create an animation of a moving engine at our railway station. Draw an engine in layer 1. आपको layer 1 में एक इंजन ड्रॉ करना है, किसकी हेल्प से, वेरियस शेप टूल्स की हेल्प से फिल करना है कलर उसमें एंड देन कन्वर्ट कर देना है into a symbol. In a layer, new layer, मेक अ रेक्टेंगल टू कवर द बैकग्राउंड. आपको एक रेक्टेंगल लेना है कवर करने के लिए बैकग्राउंड को एंड उसे क्या देना है, लाइट ब्लू कलर देना है. सो ऐड करना है आपको न्यू लेयर, मेक करना है कलरफुल रेल, एक क्या बनाना है, कलरफुल रेलवे स्टेशन बनाना है, कन्वर्ट करना है उसको एक सिंबल में. देन आपको एक रेलवे ट्रैक करना है ऐड. सो कंबाइन करना है एंड अरेंज करना है लेयर्स को स्टेज पे बाय एडिंग द बैकग्राउंड लेयर first, then railway station, then railway track, then lastly क्या आएगा, आपका इंजन आएगा. बट to create motion, अगर आपको उसमें motions create करने हैं, the train to the right side of the stage of the track, आपको क्या करना है, मूव करना है ट्रेन को right side of the stage पे, राइट क्लिक करना है आपको फ्रेम 1 पे, देन सेलेक्ट करना है create motion twin ऑप्शन पे. देन आपको क्लिक करना है, ड्रैग करना है माउस को, प्लेस करना है पे हेड को फ्रेम 45 पे, देन मूव करना है इंजन को लेफ्ट साइड ऑफ द स्टेज पे ऑन द ट्रैक को. जो कंट्रोल टैब, आपको कंट्रोल टैब पे जाना है, सिलेक्ट करना है एंटर, यूज करना है की कॉम्बिनेशन कंट्रोल प्लस एंटर की एंड योर एनिमेशन विल स्टार्ट. आपकी एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगी. Your engine will move from here to here. Now masking in Animate CC. The concept of masking in Animate CC involves using a shapes to hide or reveal an object. इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, शेप्स इन्वॉल्व होती है हाइड करने के लिए या फिर रिवील करने के लिए ऑब्जेक्ट को. इट इज लाइक आउटसाइड थ्रू अ स्मॉल विंडो. एक ऐसी तरह होता है लाइक क्या होता है, आउटसाइड थ्रू अ स्मॉल विंडो, छोटी सी विंडो की तरह होता है आपके घर में. द विंडो साइज लिमिट्स व्हाट यू कैन सी. विंडो साइज जो होता है लिमिट करता है कि आप क्या देख सकते हो. एनिमेट सीसी हैज अ स्पेशल टाइप ऑफ लेयर. एनिमेट सीसी में क्या होता है, स्पेशल टाइप की लेयर होता है, उसे क्या कहते हैं, मास्क कहते हैं. एंड इट्स कंटेंट्स आर यूज्ड टू सिलेक्टिवली रिवील और हाइड एन ऑब्जेक्ट. इसके कंटेंट किसने यूज होता है, सिलेक्ट करने के लिए, रिवील करने के लिए या फिर हाइड करने के लिए ऑब्जेक्ट को, और एनिमेशन ऑन अनदर लेयर. To do masking, follow the given steps. Select करना आपको text tool and write some text on stage. Select करना आपको text and convert करना उसको graphic symbol by selecting graphic in convert to symbol dialog box. Place करना है symbol को आपके top center of stage पे. Click करना है आपको frame 50 पे. Insert करना है frames by clicking on F5. Click करना है frame 1 पे and right click करना है, एक pop-up menu appear होगा. Select करना है आपको create motion twin option and drag करना है playhead को अपने frame 50 पे. Then आपको चेंज करना है पोजीशन ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम. मोशन पाथ ऑफ द टेक्स्ट विल अपीयर ऑन द स्टेज. जो मोशन पाथ होता है आपके टेक्स्ट का वो आपकी स्टेज पे अपीयर होगा. नाउ ऐड करना आपको न्यू लेयर एंड रीनेम करना है उसको एज मास्क. ड्रॉ करना आपको शेप अपनी चॉइस का, द इट शुड बी बिगर देन द टेक्स्ट. वो आपके टेक्स्ट से बड़ा होना चाहिए. नाउ राइट क्लिक ऑन मास्क लेयर. आपको मास्क लेयर पे राइट क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है मास्क ऑप्शन को फ्रॉम पॉपअप मेन्यू. द लेयर्स गेट लॉक्ड ऑटोमेटिकली. जो लेयर्स होंगी ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएंगी. देन प्रेस करना है कंट्रोल प्लस एंटर की को प्ले करने के लिए मास्किंग एनिमेशन को. लाइक दिस यू कैन डू द मास्किंग. नाउ मास्क रोटेशन कैसे करते हैं, रोटेट मास्क. लेट्स लर्न हाउ टू यूज मास्क रोटेशन इन एनिमेट सीसी. क्लिक करना आपको न्यू ऑप्शन पे, फाइल टैब में ओपन करने के लिए न्यू फाइल को सिलेक्ट करना है, इंपोर्ट टू स्टेज फ्रॉम इंपोर्ट ऑप्शन प्रेजेंट इन फाइल टैब. दिस इज डन टू इंपोर्ट अ फाइल. कैसे होता है इंपोर्ट करने के लिए फाइल को फ्रॉम अदर लोकेशन टू एनिमेट सीसी. फिट द इमेज इन द स्टेज एरिया. आपको फिट करनी है इमेज आपके स्टेज एरिया में यूज करके फ्री ट्रांसफॉर्म टूल को. इंसर्ट करना है फ्रेम बाय राइट क्लिकिंग ऑन फ्रेम 60 एंड सेलेक्ट करना है इंसर्ट फ्रेम ऑप्शन को.
नाउ ऐड करना है आपको न्यू लेयर बाय क्लिकिंग ऑन न्यू लेयर। न्यू लेयर पे क्लिक करके आप बटन पे क्लिक करके आप न्यू लेयर ऐड कर सकते हो जो प्रेजेंट है आपके बॉटम ऑफ द टाइमलाइन में। नाउ सिलेक्ट करना है आपको पॉलीस्टार टूल एंड चूज करना है पॉलीगन फ्रॉम ऑप्शन प्रेजेंट है जो आपके प्रॉपर्टीज पैनल पे। नाउ ड्रैग ड्रॉ करना है आपको हेक्सागन अपने स्टेज पे। देन यू हैव टू सिलेक्ट शेप, आपको शेप सिलेक्ट करनी है, क्लिक करना है कन्वर्ट टू सिंबल पे इन मॉडिफाई टैब। देन सिलेक्ट करना है टाइप एज ग्राफिक इन कन्वर्ट टू सिंबल डायलॉग बॉक्स। नाउ राइट क्लिक ऑन फ्रेम 60, आपको राइट क्लिक करना है फ्रेम 60 पे, चूज करना है इंसर्ट की फ्रेम ऑप्शन को अपने मेन्यू से। नाउ एनलार्ज करना है अपने शेप्स को इन फ्रेम 60 एंड राइट क्लिक कर देना आपको फ्रेम 1 से फ्रेम 60 के बीच में। क्लिक करना है आपको क्रिएट क्लासिक ट्विन ऑप्शन पे फ्रॉम द मेन्यू। ऑल्सो इन प्रॉपर्टीज पैनल चेंज करना है रोटेट फील्ड फ्रॉम ऑटो टू CW। ऑटो से कहा है CW में ले आना ट्विनिंग सेक्शन में। नाउ राइट क्लिक नियर द लेयर नेम एंड सिलेक्ट मास्क ऑप्शन फ्रॉम द मेन्यू। आपको सिलेक्ट करना है मास्क ऑप्शन को मेन्यू से राइट क्लिक करने के बाद क्लिक करना है आपको टेस्ट मूवी ऑप्शंस पे कंट्रोल टैब और या फिर प्रेस करना है कंट्रोल प्लस एंटर को की को टू प्ले द एनिमेशन। एनिमेशन को प्ले करने के लिए द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी रिड्यूस बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एस। साइज जो होता है एनिमेशन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एस को प्रेस करके की को साइमल्टेनियसली। नाउ व्हाट इज अनियन स्कैनिंग? In anime CC, onion scanning is a feature which is used while creating animation with multiple layers. किस लिए use होता है? As you have you ever seen onion? It has a multiple layers. So like in any onion scanning animate CC, onion scanning is a feature जो क्या करता है, create करता है animation को आपके multiple layers में। It enables you to view several frames at a time. आप view कर सकते हो several frames एक बार में। इट शोज अ फेंट इमेज, ये हल्के से फेंट इमेज शो करता है ऑब्जेक्ट के इन प्रीवियस फ्रेम्स, व्हिच मींस इन पोजीशनिंग द ऑब्जेक्ट इन द नेक्स्ट फ्रेम सो एज टू सी इट एक्शन। नाउ अनियन स्कैनिंग बटन आर प्रेजेंट एट द टॉप और एट द बॉटम ऑफ द टाइमलाइन। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? आपकी टाइमलाइन के बॉटम में प्रेजेंट होते हैं। टू टाइप्स के होते हैं, अनियन स्कैनिंग, अनियन स्कैन एंड अनियन स्कैन आउटलाइंस। With onion scan type, you can see the frames with full color. आप frames देख सकते हैं full color with a white. Onion scan outlines allow करता है आपको view करने के लिए frame as outline. Now let's understand this with the help of an example. Create करना आपको new file by selecting new option in the file tab. Import to stage option को in file tab import करना है background image in the stage and lock कर देना है layer को। Add करनी है new layer with new layer option. Then draw करना है different parts of a monkey like face, hand, legs, बॉडी एक्सेट्रा एंड ग्रुप करना है उनको दैम आफ्टरवर्ड्स। देन सेलेक्ट करना है अनियन स्कैन बटन को, राइट क्लिक करना है आपको फ्रेम 3 पे, सेलेक्ट करना है इंसर्ट की को फ्रॉम द मेन्यू। सिलेक्ट करना है आपको आर्म ऑफ मंकी एंड रोटेट करना है उसको राइट साइड में। राइट क्लिक करना है आपको फ्रेम 5 पे, इंसर्ट करना है की फ्रेम, अगेन द पोजीशन ऑफ द मंकी आर्म और मूव एनी बॉडी पार्ट इन विच एवर वे यू वांट टू एनिमेट। जिस आप उस वे में मूव कर सकते हो जिस वे में आप चाहते हो। Now keep at inserting frame and change position. आप inserting frame रखोगे, change करोगे position of monkey arm till frame 15. Now click करना है blue playback option पे in control tab. Click करना है play option पे in control tab to play the animation. Animation को play करने के लिए आपकी animation play हो जाएगी. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a good day.